in the previous Saturday. We were talking about the transportation era. So transportation were actually built in different era with passage of time. For example, if we talk about infrastructure era, so this era was started from 1942 till 1960. This specific era is also called the traditional era as well. Okay. Um, why it is called traditional era? Because all the decision making in each and everything were actually built that how they can transport from A to B. Okay, so it was very conventional one. So they were only connecting A with B. Okay, so which we call only to provide the mobility and accessibility. So means they were talking about that how they can build large scale multimodal networking, and along with that they were also talking about the pavement material and super elevation and stuff like that. Okay. uh, at that time, they were only focusing from A to B, so to provide the services where they have a very less congestion and also to create jobs. Okay, so this was a very typical era, and then the next era was about the transportation system. Okay, so you can see here, so they only built what they actually want, and they were only focusing on mobility. Okay, so for the purpose of that, how they can expect or expand their economic growth. Along with that, their perspective was also to plan for the multimodal transportation perspective as well. So, for example, how they can connect the air person or the road person or kind of a railway person. So, which was called the multimodal transportation system or infrastructure construction era. The next part started, which is called the transportation system era. In that specific era, the whole system was actually based on the that how they can establish and build the economic based framework. So, which means that the whole enterprises should be designed in a way through which the mathematical kind of a realistic model which could be based and apply to provide what the supply function and also to provide the demand based system as well. So if there is a supply and demand, we need equilibrium as well. While the networking is basically the route or the way through which the supply and demand could be fulfilled. In the next subject, we will also talk about that how we could also bring the equilibrium in the system as well, because if we talk about supply and demand, and if we forget the very important terminology of equilibrium, that how to fulfill the demand of supply and how to provide the same supply according to the demand. Okay, so the next purpose was that this specific era was kind of a beyond economic development. Okay, so in that specific era, which was mainly framed in 1960 to 1980, 85, so they were also talking about there were little bit environmental concerns, and also the purpose was that how to provide the sustainable mobility development as well. Okay, so again, the transportation system era was not as like what we did in the infrastructure era. So this was not only that how they can provide from A to B. Okay. Uh, of course, there were like mobility, both mobility and accessibility. Could you explain what is the difference between mobility and accessibility? Madam, would you like to comment on that? Hassan Khan? Hassan? Sir, Ji, madam. mobility is transfer of a body from one part to another part. The movement, actually, and transport. And the other word was what, sir? Accessibility, accessibility. Accessibility is the access to access the access to a certain point or location from a specific mode. Okay, I think you need to be more specific. What you did is correct, but not kind of very much focused. Is when we talk about mobility, that means
that what is the capability or capable of movement, okay? So which actually describe the ability of a person to move or to be moved. For example, to be moved means through any transportation medium. To move if he would like to move in his own specific mode. Okay, but when we talk about accessibility, accessibility is a bit different than mobility. Okay, mobile means mobility. Like if we called that this is a mobile era. Like for example, we are connected, but with different networks, with different uh, transportation modes. But when we talk about accessibility, this is a measure of the ease कि हम कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं और to interact with destination or to like kind of fulfill or to perform different activities within what within space, within our city, within our country. So accessibility is a bit general domain Excuse me, sir. which shows the relation between places, origin, and activities. While when we talk about mobility, mobility is basically the capability of the movement. Madam, is it clear now? Excuse me, Okay. sir. Gigi, go ahead. सर क्लास किधर है सर? मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी. A1307 location is quite clear. ओके Please सर. mind that, okay? Whenever you want to come, just come straight away. A1307. Thank you. So the next part is about the recognition of unpriced uh, externalities which causes problem. So when we talk about externalities, which is basically refer to the external cost or indirect cost, which could be benefited from kind of a uninvolved party. For example, a very simple example. Okay, so you need to understand when we talk about uh, congestion air in terms of externalities and paying the cost. That means okay, don't pay the price as an individual. Like for example, there should be company involved, there should be decision maker involved, each and everyone through which are like the are all those people who are actually using that specific system, they should pay for the congestion, air quality, and sprawl as well. Okay, uh, I would like to add one point here. If you take a bit more top view of that specific point, that how we can recognize externalities. So that means actually that जिस तरह हम हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ना मुराद का कि फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज exempted to pay the toll, this person is exempted for example to pay for the air congestion like pollution etc something like that. So in all the developed countries this specific type of practice is almost kind of obsolete, it's almost gone. Okay, so you need to understand when we talk about transportation system era, so till 1985, they were mainly focusing on like those issues and those things. So it means that this was still the building stage. The last part is about the intermodal perspective, which is somehow connected to the freight. When we talk about the multimodal or the intermodal, so here we are basically referring toward the freight transport, जिसमें हम लोग cargo transport की बात करते हैं, containers की बात करते हैं वगैरह वगैरह. So means that how we can connect road, air, rail, so to interact. So basically this is the interaction of different mode. अच्छा ये slide, why this slide is important, so that you have idea that what were the practices around the world while developing the transportation system. जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इरा पढ़ा 1960 तक, उस तक जो सिचुएशन थी that was completely different. But till 1985 again the whole situation was completely different. अभी हम जब नए सिस्टम की बात करेंगे जिसको हम लोग 20th century या फॉर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम दैट
जो अभी हमारी सेंचुरी चल रही है 2022 की, जिसको हम लोग 20th सेंचुरी की प्लानिंग या वो क्लियूज सिस्टम जो बेसिकली मेनली फोकस था कि हम किस तरह क्लियूज सिस्टम को, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें बन गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ईरा में जितनी उनसी गलतियां हुई थी तो वो भी खत्म हो गई। अच्छा, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग वन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हियर। अच्छा, एयर क्वालिटी हो गई, कंजेशन हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्बन स्प्रावल। अर्बन स्प्रावल किसको कहते हैं मैडम, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द स्प्रावल कंसेप्ट? अच्छा, जब भी हमारी रैपिड, whenever there is a rapid expansion of geographic extent of the cities or towns, जहां पे हमारे साथ where we are focusing mainly on the single use zoning, simple as that, हर वो कंसेप्ट जब आपकी सिटी में बहुत ज्यादा लोग आबाद हो जाते हैं, when the people are looking for the affordable accommodation, so that is called basically sprawl or the urban sprawl concept. So means the development of that specific location where there is no concern or the constraint or the concern in terms of the development, जिसको हम लोग कहते हैं कि लोग जो है वो खुद से आबाद हो रहे हैं. That means sprawl or the urban sprawl concept. Okay, so now we are talking about the transportation system is a CLIOS system. Infrastructure mein, we were talking till 1942 till 1960, while in the transportation system era, we were talking till 1985. So as I already mentioned, in that specific section, we will talk about it, how the large-scale interconnected open socio-technical system could be. For the very first one is about advanced technology and mathematics. Okay, so advanced technology means that how we can design the system to operate. ITS जो है is one of the amazing example of the advanced technology and mathematics. We already installed different sensors. We already installed different modular, different controller across exactly at the road. I think I already gave the example. There was a signal in Virginia Tech when I was there. So, for example, if this is a two-lane road, okay, if your vehicle is exactly stopped at that specific intersection, so then this specific signal might change after 10 to 15 seconds. But if this specific signal did not detect your movement, if you are, for example, somewhere here or in the middle, so that means that you are not exactly standing above the sensor. So your presence is still kind of not monitored. So for example, if you're new in the city, if you don't know that system, so you might stay here for like very long while, because वहां पे एक ऑटोमेटिक सिग्नल इंस्टॉल होता था जो बेसिकली खुद ब खुद चेंज होता था unless and until the same signal did not detect your movement. अच्छा, सिमिलरली हमारे साथ कंप्यूटेशन की एक एग्जांपल आ जाती है. जब भी हम लोग आईटीएस की बात करते हैं, व्हाट इज आईटीएस बेसिकली? जो खुद से कंप्यूट भी करे, कम्युनिकेट भी करे, एनालाइज भी करे और इंस्ट्रक्ट भी करे. इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आजकल, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स में आता है हमारे साथ, और मुख्तलिफ किस्म की सेंसिंग. एनालाइज का मतलब बेसिकली सेंसिंग होती है. थ्रू कंप्यूटेशन आपके जो रिसीवर्स होते हैं, जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, उनके थ्रू कंप्लीटली जो डेटा होता है, दैट इज एक्चुअली मर्ज इनटू द आईटीएस थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपके बहुत सारे बफर्ड लॉजिक होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लॉजिक पैरामीटर्स भी कहते हैं कोडिंग के अंदर. उसके बाद फिर आपकी एनालिसिस होती है. एनालिसिस से मतलब क्या है? अगर आप लोगों ने, इफ यू एवर experienced whenever we have the congestion situation, for example, you would like to go from Ahmedabad to Islamabad, और वो आपको रियल टाइम लोकेशन थ्रू जीपीएस प्रोवाइड करती है that this specific route is a bit congested, so you should take a bit alternative. अच्छा, अब यहाँ से व्हीकल की मूवमेंट से, या जब इसको कहते हैं फ्लो पैटर्न,
फ्लो पैटर्न, ये नॉर्मल फ्लो पैटर्न होती है कि किस तरह एक व्हीकल्स की मूवमेंट आपके साथ आ रही है। फिर हमारे साथ एक नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजेशन फ्लो पैटर्न। तो जब आपके साथ बार बार एक ही जगह पे आपके साथ कंजेशन आ जाती है, कंजेशन से मतलब कंजेशन का मकसद क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन कंजेशन? एनीवन? हाउ वी डिफाइन इट? व्हाट इज कंजेशन? रश डजंट मीन एनीथिंग। जब आपका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट, इन दोनों को जब आप फिक्स कर लेते हो और इसका आपको लेंथ भी मालूम हो और आपके साथ डिजाइन स्पीड भी हो, तो फिर आप कह देते हो कि दैट स्पेसिफिक पोर्शन इज बेसिकली डिजाइन्ड फॉर टू ऑपरेट बिटवीन 60 टू 90 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है डिफरेंट कंजेशन की, ठीक है, जिस एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फ्लो, उसके बाद फिर आपकी मॉडरेट आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी ग्रेड लॉक आ जाती है, ग्रेड लॉक फ्लो। जब आपकी ग्रेड लॉक आ जाती है, दैट वन वी कॉल जैम, या जिसको हम लोग आम से अल्फाज में कंजेशन भी कहते हैं। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितने व्हीकल्स आपके पर टाइम में निकल रहे हैं जो आपने डिजाइन किया हुआ है, दैट्स। अच्छा, हम लोग एक पॉइंट से चले गए जिसका मतलब था एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। एडवांस टेक्नोलॉजी से बेसिकली मुराद यही है कि हाउ टू डिजाइन एंड एनहांस द ऑपरेशन। ITS is one of the best example of that, through which we can compute, communicate, and sense through different methodologies, logic parameters, analytical tools, जो हमारे साथ फंक्शन करके हमें एक काइंड ऑफ सजेशन प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल चेंज, द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी आपके पास, व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल प्लानिंग फॉर ए टू स्टार्ट विद ए न्यू बिजनेस मॉडल, सो देयर शुड बी अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक आपकी प्राइवेट सेक्टर होगी, डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड वाइड में प्रैक्टिसेस होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। आप लोगों ने अगर एक प्रोजेक्ट का नाम सुना हो, टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की का मतलब क्या है? इसके अलावा एक था PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें से आप 3 डिफरेंट एंटिटीज को मिला देते। और यहाँ पे टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? ये आपका फॉर एग्जांपल एक प्लान है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, अब ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने डिफरेंट बिल्डर्स को आपने इनवाइट कर दिया, उनको आपने बता दिया कि वी विल वर्क विद दैट मच इक्विटी। इक्विटी मींस प्रॉफिट। नो वन इज दैट मच गुड कि वो आपके साथ investment करे without gains. When we talk about business, it's pure business, okay? So you should put your emotional, religious, all those parameters at aside. When we talk about business, so business means, for example, if the state gonna invest, for example, amount X in any project, so the rate of how much percentage they will get the same amount with the profit. Okay, so turnkey project is basically about कि स्टेट को ये प्रोजेक्ट चाहिए था और डिफरेंट बिल्डर्स आ गए आपके साथ, ठीक है, दे एक्चुअली कंपीट फॉर दैट। सो जिस जो लोवेस्ट था उसको वो एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसने ये कंप्लीट कर दिया, इक्विटी उसकी फिक्स हो गई विद पैसेज ऑफ टाइम। अब सवाल ये है कि जब वो अपनी टर्न की मतलब जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं चाबी, जब आप उसी कमरे की, उसी रूम की, उसी बिल्डिंग की, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसी कंप्लीट प्रोजेक्ट को जब आप हैंड ओवर कर लोगे टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं टर्न की। यहाँ पे स्टेट जो होता है, दे आर एक्चुअली नॉट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनीथिंग। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी आपने कर दिया, हर एक चीज आपकी अपनी होगी, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेनली कि किस तरह हाउ वी कुड ब्रिंग द डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर काइंड ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड प्लानर, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर रोल्स ले ले एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साथ सोशियो टेक्निकल।
ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टेड टू अदर सोशियो टेक्निकल। ये हमने नेस्टेड टेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था। अब सोशियो टेक्निकल से क्या मुराद है? सोशियो टेक्निकल की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एंड्रॉइड फोन की आप लोग एग्जाम्पल ले लें कि हम लोगों ने किस तरह हम लोग डिवेलप हो गए विद ब्रिंगिंग द एंड्रॉइड सिस्टम। अब इसके फिर डिफरेंट पैरामीटर्स है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो मैक्सिमम लॉट है या जो लोग है वो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं है, बट स्टिल दे हैव द एंड्रॉइड सिस्टम, तो वो आप लोग देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी आप लोगों ने तो सिर्फ यहाँ पे सिंपल जीपीएस देखा हुआ है। बाहर की ममालिकों में रियल टाइम एप्स होती है जिसमें फॉर एग्जांपल आप अपना ओरिजिन और अपना डेस्टिनेशन आप जस्ट आप पुट कर देते हो तो वो आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव दे देता है, अल्टरनेटिव 1 2 3 4। तो फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इतना फासला मैंने इसके थ्रू मतलब हल करना है, कवर करना है, उसके बाद फिर मैंने ये वाली मोड लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी किस तरह लेकर आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ फोर्थ नंबर पे एक्सपेंडेड रोल फॉर स्टेक होल्डर इन ए काइंड ऑफ ए डिफरेंट इंटरेस्टेड या वो लोग जो आपके सो कॉल्ड स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टेक होल्डर की बात करेंगे तो उन लोगों की हम लोग बात करेंगे जो बेसिकली डिजाइन भी करते हैं और डिसाइड करते हैं लोगों के लिए, मतलब डिसीजन मेकर्स। ठीक है, उनको आप किस तरह लेकर आते हैं। लास्ट लेवल पे हमारे साथ है मैक्रो डिजाइन परफॉर्मेंस कंसिडरेशन। माइक्रो और मैक्रो डिजाइन पे एक कंप्लीटली हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे वी विल जस्ट मूव फॉर अ टाइम बीइंग टू अ बिट अहेड। अच्छा, ये ताकि आप लोगों को जस्ट एक आइडिया हो जाए कि माइक्रो और मैक्रो ट्रैफिक फ्लो में फर्क क्या है। ठीक है, जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे, फर्स्ट वन इज माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो में हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रैफिक फ्लो, स्पीड पैटर्न, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। डेंसिटी, स्ट्रीम, लेवल ऑफ सर्विसेज, वेरिएबल सच एज प्राइसेस, ट्रेवल टाइम, सर्विस रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड सेफ्टी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी हम माइक्रो की बात करेंगे तो इसमें से वो पैरामीटर हम लोग कंसीडर करेंगे जो ड्राइविंग और ड्राइवर और व्हीकल के बिहेवियर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब आप लोग देख लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रैफिक फ्लो, ये वो पैरामीटर है जो लोगों की बिहेवियर को बेसिकली एनालाइज करती है। अब स्पीड है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना मोटरवे पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, और एक दूसरी कहावत है कि हेस्ट मेक वेस्ट। तो एक थर्ड एक कहावत है कि फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग दैट द व्हीकल डज नॉट हैव एनी आईज इन ईयर्स, सो द ह्यूमन शुड यूज हिज ओन। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी वो पैरामीटर्स है जो एक इंडिविजुअल की बिहेवियर के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। लेकिन जब हम मैक्रो की बात कर, अच्छा, माइक्रो और मैक्रो इन दोनों में फर्क क्या है? माइक्रो में हम एक छोटे लेवल पे देख रहे हैं, एक इंडिविजुअल की वजह से विद इन द सिस्टम में हमारे साथ कितनी इंटरप्शन पॉसिबल है। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में हम बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, रोबस्टनेस, रिजिलियंस, स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, और इसके साथ साथ है स्टेबिलिटी हमारे। अच्छा, अब एक एक की मैं आप लोगों को डिफिनीशन बताता हूं, आप लोग थोड़ा सा आप लोग लिखना शुरू कर लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी से हमें क्या मकसद क्या है कि हाउ मच डू यू नीड, या आपके सिस्टम को फॉर चेंजिंग द स्ट्रेटेजी, वो कितना फ्लेक्सिबल है कि अपने आप को एडॉप्ट करे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन।
तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे साथ एडॉप्टेबिलिटी, जो जिस तरह नाम से ही जाहिर है, हम लोग यूजुअली कहते हैं जब आप फॉर एग्जांपल एक नए शहर या एक नए मुल्क चले जाते हो तो हम कहते हो कि आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, डिड यू अडॉप्ट योरसेल्फ टू द सिचुएशन। तो मतलब ये है कि आप हाउ द सिस्टम कुड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। अच्छा, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है जो हम लोग सिस्टम पे बैठ के डिजाइन करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग मॉडलिंग की सिमुलेशन की बात करेंगे, दैट मीन्स दैट वी आर प्लानिंग फॉर द आइडियल सिचुएशन। जब आइडियल की बात करेंगे दैट मीन्स दैट वी हैव द कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स आपके हाथों के मोहरे हैं। It runs through your own system, through your own brain, through your own perception. लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सिस्टम की, जब आप रियलिटी में उसको वो कितना अडॉप्ट कर रहा है, तो दैट थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड लेवल पे है हमारे पास रोबस्टनेस। what does it mean by robustness? Anyone, any idea? अच्छा, जब भी हम लोग रोबस्टनेस की बात करेंगे, when you hit someone, okay, जब आप किसी को फॉर एग्जांपल पंच मार देते हो, गाड़ी हिट कर लेते हो, या फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ यूजुअली टकरा जाते हो, तो वो कितना उसमें एक एब्जॉर्प्शन लेवल है कि आपके शॉक्स को, आपके हिट्स को काइंड ऑफ डिफेंड कर ले। तो अगेंस्ट इट मींस दैट हाउ मच यू कैन टेक और हाउ मच pressure or different situation you could adopt before falling down. Simple as that. How much you can take before you fall down. तो ये आपकी आ गई रोबस्टनेस। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे है रिजिलियंस। रिजिलियंस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हाउ लॉन्ग यू टेक टू स्टैंड अप आफ्टर यू फॉल डाउन। आपको कितना टाइम चाहिए जब आप फॉर एग्जांपल जमीन पे गिर जाते हो। और ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपकी लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, जिनकी हमें बार बार जरूरत भी बेसिकली होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्केल एबिलिटी। स्केल एबिलिटी का मकसद क्या है? आप लोगों ने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब भी हम किसी चीज पे एक प्रेशर लगा देते हैं, उसका एक सिंपल सा एक फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। फिर हमारे पास स्ट्रेन आ जाती है। स्ट्रेन का क्या है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। तो जब हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं तो एक किसी ऑब्जेक्ट में कितनी चेंजेस आ जाती है उसकी बॉडी में। तो एल ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल changes in the length is equal to its proportion, is called strain. तो जो scale ability है, इसका मकसद बेसिकली यही है, the capacity, the capability to be changed in the size या scale या in the different parameters or characteristic. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलरिटी। बेसिकली ये फोर्थ नंबर पे जो है, इसका मकसद ही यही है कि आपका सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, कितना वो डिफरेंट सिचुएशन को वो अडॉप्ट कर सकता है। तो मींस यही है कि जब आपके साथ स्केड्यूल की या रूट्स की खराबी की वजह से या बंदिश की वजह से या डिफरेंट मोड्स या जो फॉर एग्जांपल बसेस में कोई फेलियर आ गई वगैरह वगैरह, तो आपका सिस्टम कितना डिजाइन हुआ है कि जो चीजें आपकी आ रही है क्या वो अपने आप में फ्लेक्सिबल कर सकता है कि नहीं। सिंपल से अल्फाज में मकसद इसका ये हो सकता है कि अगर एक आपका रूट हो जिसके लिए आपको 10 बसेस की जरूरत है उसको चलाने के लिए, उसमें से 3 आपकी खराब हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपके साथ टोटल है 7। क्या ये पॉसिबल है कि आपका सिस्टम काम करे इन ही 7 बसों पे विदाउट एनी इंटरप्शन? तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में मॉड्यूलर वो कितना है। लास्ट में है स्टेबिलिटी, मतलब हाउ लॉन्ग यू कैन परफॉर्म। जिस तरह हम लोग सिविल इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हर एक चीज की एक लाइफ बताते हैं,
उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। तो सिमिलरली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, हाउ लॉन्ग दैट स्पेसिफिक सिस्टम कैन या कुड परफॉर्म बिफोर फॉल डाउन। तो आई होप कि अभी माइक्रो और मैक्रो लेवल की जितनी चीजें हैं वो हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा एक अलग स्लाइड में डिफाइन किया था। मैक्रो डिजाइन परफॉर्मेंस, माइक्रो और मैक्रो दोनों, ठीक है ना। लेकिन अगेन हम लोग यहाँ पे जब क्लियूज की बात करेंगे एक ब्रॉडर लेवल की, तो वी विल मेनली फोकसिंग ऑन ए वेरी मेजर इश्यूज, क्योंकि अगेन जब आप मेजर इश्यूज के लिए जब आप डिजाइन करोगे तो ये आपके छोटे इश्यूज भी कवर कर लें। अच्छा, अभी फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना एडवांस टेक्नोलॉजी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी और इस सिस्टम का मकसद बेसिकली क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आप लोगों को समझना आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास ऑपरेशन फोकस। ऑपरेशन फोकस का मकसद ही यही है कि वो सिस्टम the management which are the system which shows how to do much more with existing resources in terms of response, in terms of action, in terms of time, in terms of equality, जिसमें हम लोग ये देख ले कि विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कितना प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज ऑपरेशन फोकस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साथ टेलर्ड कस्टमर सर्विसेज। जब भी हम, अब यहाँ पे तीन अल्फाज है, एक कस्टमर आ गई और एक आपकी सर्विसेज आ गई। अब ये तो दोनों हमारे मतलब हमें ऑलमोस्ट जिस तरह हम लोग मतलब किसी भी दुकान पे चले जाते हैं तो वी आर बेसिकली कस्टमर, और जो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो इसको तो हम एवोल्यूएट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से। लेकिन जब हम टेलर्ड की बात करें कि वो किस तरह रीडायरेक्टेड है, तो जब हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो मतलब ये है कि द अप्रोच थ्रू विच वी प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस दैट योर क्लाइंट डिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, आप जब इस्लामाबाद के मेट्रो में जब आप चले जाते हो तो जैसे ही आप एंट्री करते हो तो वहीं पे जो सेल्समैन होते हैं वगैरह वगैरह, वो आपसे फौरन पूछते हैं जी सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, तो वो फिर आपको वहीं से फिर किसी ना किसी को रेफर करा देते हैं। तो ये बेसिकली वो सर्विसेज है जिनके जरिए यू कुड एंड यू कैन स्ट्रेंथन योर सर्विसेज एंड योर परफॉर्मेंसेस। थर्ड नंबर पे है हमारे साथ प्रो एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजीज। अब जिस तरह एक नया कंसेप्ट आजकल बहुत ज्यादा वेल नोन है और बहुत ज्यादा फोकस पे है आजकल, वो क्या है कि हम किस तरह एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेकर आ सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर आपने जीपीएस लगा के, फॉर एग्जांपल इफ यू कुड डिटेक्ट द टाइम ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टू रीच टू योर डिजायर लोकेशन, और आपने वो वाला रूट ले लिया जहां पे कंजेशन है आपकी, तो आपकी जो इमिशन का लेवल होगा उसी फ्लो में वो बहुत ज्यादा मजीद बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो सोशल टेक्निकल जो आपकी इंटरेक्शन की कैपेबिलिटी है, दैट कुड आल्सो बी सेव्ड थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप उसको प्रो एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी की तरफ भी आप उसको लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे साथ कि किस तरह आप डिफरेंट लेवल ऑफ हम लोगों ने इंटर मॉडल का भी पढ़ा था, ठीक है, और इंट्रा मॉडल का भी पढ़ा था। अब यहाँ पे है हमारे साथ कि इंटर मॉडलिज्म थ्रू विच वी कुड एक्सटेंड इट इनटू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये बहुत बड़ी डिफिनीशन है, ठीक है, मतलब ये है कि आपका सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कितना सिग्निफिकेंटली वो अलाइन हुआ है थ्रू विच we could provide such type of intermodal services which emit less noises, less emission, more reliable, and also deliver each and everything within the desired time. फॉर एग्जाम्पल अब कुछ ममालिक में इस तरह की सर्विसेज भी है, इवन कुछ हमारे DHL में, अमेजोन वगैरह वगैरह में इस तरह की सर्विसेज है कि वो अक्सर कस्टमर से ये पूछती है कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड टाइम, at the time you would like to receive your
पार्सल, योर ऑर्डर, योर XYZ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम किस तरह इंटरमोडल को कनेक्ट करके उसको एक एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरमोडलिज्म को लेके एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो वो इस तरह पॉसिबल है कि आपका सिस्टम इतना सिग्निफिकेंट कनेक्टेड हो जिसके जरिए आपका लेस टाइम हो, लेस एमिशन हो, और इसके साथ साथ पोल्यूशन भी उसमें कम हो, नॉइस पोल्यूशन भी कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है रिलायबिलिटी और डिलीवरी टाइम, कि आपका सिस्टम कितना रिलाई है, क्या लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मींस ट्रस्ट, सिंपल एज दैट। कोई सवाल हो फिर आप लोग फौरन पूछ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन है क्या बेसिकली? हसन, यू? मैडम, आप कुछ कमेंट करना चाहेगी? अच्छा, लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि वो एक्शन जिसके जरिए वी कैन ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, मतलब जो आपकी चीजें हैं, सिंपल से अल्फाज अल्फाज में मैं इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हम लोग वो आउटपुट लेवल डिटरमाइन करना चाहते हैं जिसके जरिए हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज की एक रूटिंग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक की, ताकि वो फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ एक राइडर है, उसने 6 से 7 जगहों पे पॉइंट्स पे उसने डिलीवरी करनी है, राइट? और इनका आपस में खासी डिफरेंस भी है। ये 5 आपने उसको, ये 5 पॉइंट आपने उसको दे दिए। अब आप इसको किस तरह डिजाइन कर रहे हो कि वो चला जाए और उसमें से 2 चीजें हो, नंबर 1, नंबर 2, एम्प्टी रन जो हो वो कम से कम, ताकि वो चले किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ चले, और एक वो वाला रूट हो जिसके जरिए वो कस्टमर की प्रायोरिटीज को भी बढ़ा दे और कंपनी के अखराजात भी कम कर दे। नेक्स्ट क्या है आपकी? डिलीवरी ऑन टाइम। तो ये मेन एक कंसेप्ट होता है। यहाँ पे तो हम एक इंडिविजुअल, मतलब एक पार्सल की, एक लेटर की एग्जांपल ले सकते हैं। ये एग्जांपल है एक बहुत बड़े बल्क की, जिसमें से हम बहुत ज्यादा चीजों के बारे में हम लोग यूजुअली सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन डिमांड एनालिसिस। ट्रांसपोर्टेशन डिमांड जो है, ये हमारे पास वो इनपुट पैरामीटर्स है जिसके जरिए हम लोग अपनी सप्लाई स्ट्रेटजीज और अलॉन्ग विद आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैपेबिलिटीज कितनी है वाइल लैंड यूज प्लानिंग। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल बीआरटी पेशावर में कारखानों से लेकर हाजी कैंप तक एक रूट तो बना दिया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लैंड यूज प्लानिंग की जो डिपार्टमेंट था, अब हमारे यहाँ तो खैर खुद मुख्तारी ये सारी चीजें बहुत कम होती है, लेकिन अब क्या लैंड यूज प्लानिंग का मकसद ये है कि अगर आपकी टोटल लैंड जो सिटी की है, फॉर एग्जांपल आप इज्यूम कर ले कि वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर है फॉर एग्जांपल, उसमें से जो आपका बिल्ट इलाका है कमर्शियल का और रेजिडेंशियल का और रिक्रिएशन का, वो आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया। अभी आपने उसमें से ऑलरेडी एक सिस्टम बना भी दिया। अब जो आप अभी एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हो, तो यू नीड टू वायलेट समवेयर। आप लोगों ने अर्बन प्लानिंग में पढ़ा होगा जोनिंग कंसेप्ट का, कि एक एक जोन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप जब वायलेशन करोगे, या आइदर यू विल वायलेट द रूल्स एंड राइट्स ऑफ द रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल्स की वगैरह वगैरह की। अब इसकी सिंपल एग्जांपल आप लोग इस तरह देख सकते हो कि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट डिमांड एनालिसिस को फुलफिल करने के लिए लैंड यूज तो कर रहे हैं, लेकिन पेशावर के मेन जगहों पे जितने आपके टाउन में या फिर
फिरदौस के इलाके पे जितनी आपकी कमर्शियल मार्केट है उनके सामने ही आपका सिस्टम आ रहा है, एग्जिट आ रही है बेसिकली, बड़े बड़े स्टेयर्स आपने बना दिए। तो जो एक कंसेप्ट था पेशावर में कि मेरा कॉर्नर मतलब कॉर्नर का एक कमर्शियल दुकान है, वो कंसेप्ट इसकी वजह से बिल्कुल खत्म हो गया। हैदराबाद में वो जगह जो बीआरटी स्टॉप के करीब है, दे आर एक्चुअली लूजिंग इट्स वैल्यू। अगर 5 मरले का मकान आपको फॉर एग्जांपल कहीं और पे 2 करोड़ में मिल रहा है, तो वो मकान आपको कम से कम 1 करोड़ 50 या 60 लाख में मिलेगा, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द बीआरटी। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लैंड यूज प्लानिंग आपको अलाउ नहीं कर रहा था, बट अगेन यू हैव वायलेटेड हु, कमर्शियल्स अलॉन्ग विद रेजिडेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन डिमांड एनालिसिस इस तरह होनी चाहिए जो एक क्वांटिटेटिव इनपुट पिरामीटर के थ्रू आपकी एक सप्लाई स्ट्रेटेजी को भी एनालाइज करे, सिस्टम भी बन जाए, और इसके साथ साथ आप किसी की वायलेशन भी मतलब वहां पे ना हो। मतलब ये है हमारे पास आपने एक लोगों को फैसिलिटेट करना है, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन देयर, लेकिन अगेन क्या आपकी लैंड यूज जो है वो आपको अलाउ कर रही है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम नेटवर्क कंट्रोल एंड प्रोविजन ऑफ ट्रेवलर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अभी मैं मोटरवे वालों के साथ शायद नेक्स्ट वीक में आईजी आ जाए खालिद महमूद साहब, तो उसके साथ अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, V2V, आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च भी कर लें, ठीक है। जितनी भी BMW की आजकल गाड़ियां आ रही है उसमें से ये एक सिस्टम इंस्टॉल है। पाकिस्तान लेवल पे हम लोग एटलीस्ट ये कर सकते हैं that we could install kind of a sensor इंजन के अंदर वगैरह वगैरह इंपोर्ट के टाइम पे, या फॉर एग्जांपल टोयोटा की या एमजी की या फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की अभी जितनी इसके बाद वो एक लॉट आए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि आप इसमें से फलां सेंसर आपने इंस्टॉल करना है, ताकि उसी सेंसर के मुताबिक अगर एटलीस्ट V2V कम्युनिकेशन ना हो तो एटलीस्ट वी कुड डिटेक्ट दैट स्पेसिफिक व्हीकल। तो फिर आपको ये आइडिया हो कि वो उसका रैश बिहेवियर, ड्राइविंग बिहेवियर और उसके साथ आपकी वायलेशन, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट मैं अभी इंशाल्लाह एक दूंगा कि आप लोग थोड़ा सा रैश ड्राइविंग बिहेवियर पे आप लोग थोड़ा सा एक असाइनमेंट आप लोगों ने लिखना होगा, और फिर आप लोगों ने मुझे ये बताना होगा कि अगर हमारे साथ एक स्पीड फिक्स हो एक रूट पे, मैं वो स्पीड वो रूट डिफाइन कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतनी आपकी स्पीड है ऑपरेटिंग, बी से सी तक इतनी है, ओवरऑल आपने यहाँ से ये लेकर यहाँ तक मुझे बताना है कि अगर एक व्हीकल इतने टाइम में पहुंच जाए तो उसने कहाँ कहाँ पे वायलेशन की है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि रियल टाइम नेटवर्क कंट्रोल हो आपके साथ, जिसके जरिए आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपकी वायलेशन हो रही है। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पूरे मोटरवे में हमारे कहीं पे भी कैमरा वगैरह इंस्टॉल नहीं है, ठीक है ना। तो एक अजीम मुल्क एक अजीम डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ व्हीकल ऑटोमेशन एंड अ क्रैश अवॉइडेंस सेफ्टी पर्सपेक्टिव। जिस तरह मैंने आप लोग को पहले भी कह दिया जिस तरह कितना इजी है हमारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, तो ये हम जब शुरुआत ही करते हैं, वो एक मूवी आई थी ना उसके उसमें एक डायलॉग था, लाइसेंस टू किल। यहाँ पे हम लोग बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग अ लाइसेंस टू किल उन लोगों को जो बेसिकली मेच्योर नहीं है, या दोज दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ स्किल। फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर जानते हो तो यू कुड हैव ए वेरी इजीली दैट स्पेसिफिक पार्ट, वो आपके लिए इतना बड़ा मतलब मसला नहीं है। तो जो है बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इसको हम किस तरह ऑटोमाइज कर सकते हैं, व्हीकल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब कनेक्टेड थ्रू वो सिस्टम जिस जो यूजर इंटरफेस पे हो, मतलब मैं उसको चलाऊं लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। देखो, ह्यूमन इंटरफेस होना चाहिए, someone will design the system, right, but it should be kind of limited या confined
जिसमें से हम लोग अपने आबाओ अजदाद की, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अपना है, इसको छोड़ दो, ये मेरा भतीजा है, इसको छोड़ दो, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। रूल शुड बी फॉर ईच एंड एवरी वन। वो चिगोरे का एक वो है, कॉल है कि कानून जो है वो गरीब के लिए बना है और अमीर के पैरों की के तलवे चाटती है, ठीक है ना, गरीब के लिए बना है, ठीक है। तो इफ द कंट्री हैव अ सिस्टम जहां पे आपकी लॉ जो है इज नॉट अप्लाइंग ऑन ईच एंड एवरीवन इक्वली, देयर विल बी अ सिस्टम, देयर विल बी ए chaos। तो ये आप देख ले, एज अ लर्नर पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे साथ रीजनली स्केल्ड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से एग्जाम्पल इसका यही है कि आप एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए, फॉर एग्जाम्पल पंजाब की जो स्ट्रेटेजी होगी दैट विल नॉट बी अप्लाइड इन दी बलूचिस्तान, क्योंकि एक तो लैंड की जो लोकेशन है, ज्योग्राफी है, वो अलग है, पॉपुलेशन कम है। पंजाब की अलग होगी, बलूचिस्तान की अलग होगी, सिंध की अलग होगी और केपी की अलग होगी। तो इसका मतलब ही बेसिकली ये है कि आपकी एक स्टेट लेवल पॉलिसी होनी चाहिए, जिस तरह इशफाक साहब ने आप लोगों को पिछले क्लास में भी ऑलरेडी कहा था कि हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है, स्टेट की ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी नहीं है, बट लेकिन आपकी रीजनल के अंदर, आपके किसी भी प्रोविंस के अंदर उन्हीं के डिजायर के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले ये बेसिकली एक एक पॉइंट की यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये वाला इंस्टीट्यूशनल चेंज, अब हम यहाँ पे आ गए कि हम किस तरह एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर को एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसको हम लोग लेकर आ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट है हमारे साथ पब्लिक सेक्टर चेंज among and within levels of different government and bodies and of course entities, ठीक है। तो जब भी हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि वो रिलेशनशिप जो आपकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक रीजनल प्लानिंग पे और उस तरह की एक ऑपरेशन पे ले जाए जो आपकी रीजनल कॉम्पिटिटिव के साथ साथ आपकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज कर दे ताकि वो गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर दे। अच्छा, आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें से और हमारा फर्क कहाँ पे आ जाता है कि एक तो उनकी टैक्स पेयर स्केल बहुत ज्यादा है। हर किसी को आपने कोई भी पेमेंट करनी है दैट शुड बी थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े ईमानदार दयानदार है, लेकिन उनका सिस्टम एक बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जो मतलब कैशलेस इकोनॉमी जिसको हम लोग कहते हैं, या फॉर एग्जांपल जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, ब्लैक अमाउंट, ब्लैक मनी, तो वो वहां पे उन लोगों ने ऑप्शन बहुत ज्यादा कम कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइवेट सेक्टर चेंज विद न्यू बिजनेस मॉडल एंड प्लेयर बियॉन्ड दी ट्रेडिशनल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पाकिस्तान रेलवे की एग्जांपल दूंगा कि वो लोग जो आपको तेल की सप्लाई करते थे पहले, तो एक स्टेट लेवल पे उनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज मिलता, क्योंकि आजकल ये कुछ ऑफिसर्स के मुताबिक के उनके साथ ये जो पेट्रोल पंप के जो लोग हैं उनका ऑलरेडी उन पे 2-2, 3-3 महीने का कर्जा होता है। तो अब अगर डिमांड आपकी चेंज हो गई ना, तो आपने उनको मोटिवेट किस तरह करना है, अपने साथ लेके किस तरह जाना है, क्योंकि आपने यहाँ पे विदाउट जीरो रिसोर्सेज में आपने अपने सिस्टम को चलाना। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर चेंज में आपने एक नया बिजनेस मॉडल लेकर आना होगा, जिसमें से जितनी भी कंपीटिटिव प्लेयर्स हैं उनमें से आपको सबसे रियलिस्टिक और सबसे वो वाला प्लेयर मिल जाए जो आपकी जरूरतें भी पूरी हो। यहाँ पे है बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वन। बस ये नहीं होना चाहिए कि 1853 का जो कानून बना है रेलवे का, अब उसके मुताबिक आपने पर लीटर में डीजल के आपने उसको ₹1 फॉर एग्जाम्पल दे दिए प्रॉफिट। नहीं नहीं, 1853 का कानून अभी काम नहीं करेगा, ये है 2022। दूसरी बात ये कि आप उसको पेमेंट भी 2 से 3 महीनों के बाद कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हमारी एक प्रोफेसर थी, वो हम लोगों से कह रही थी कि आप €1 अभी लेना चाहते हो
या आपको 1 महीने के बाद 1 यूरो 10 सेंट चाहिए, तो मेजॉरिटी सेक्शन ने क्लास ने 1 यूरो 10 सेंट का कहा था। उसने कहा नहीं नहीं, उसने कहा ये आप लोग नुकसान में जा रहे हो। हमने कहा मैडम किस तरह, आप थोड़ा सा बता दीजिए। उसने कहा जब आप इसमें इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, डिप्रिसिएशन वैल्यू को, पर कैपिटा इनकम को, और इसके साथ साथ सीपीआई एक पैरामीटर है, कास्ट प्राइसिंग इंडेक्स, इस तरह कुछ आता है जिसमें से आप फॉर एग्जांपल कि महंगाई की परसेंटेज जिससे आप बेसिकली निकालते हो सीपीआई आप, तो वो जब आप मिला देते हो तो दिस वन इज फार बेटर इन द प्रेजेंट एंड दिस वन इज फार वर्स आफ्टर इवन ए सिंगल वीक। क्लियर? इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जब फॉर एग्जांपल आज से 20 साल से पहले आप लोग थोड़ा सा आप लोग एज्यूम कर लें कि गोल्ड का रेट क्या था और आज का गोल्ड का रेट क्या है हमारी ही इकोनॉमी के अंदर, हमारे पैसों के मुताबिक फॉर एग्जांपल। सिमिलरली आपने पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज चाहिए, और ये वो सारी चीजें हैं कि अगर आपने वहां पे कन्वेंशनल बंदे को बिठा दिया तो आपके साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चीजें उसी रेपेड में नहीं चलेगी। एक है सिस्टम को चलाना, एक है सिस्टम को फ्यूचर के लिए उसको टैकल अप करना। तो आपने अगर सिर्फ चलाना है तो फिर तो आप बिल्कुल ट्रेडिशनल लोगों को आप बिठा दीजिए, लेकिन आपने अगर उसको आगे लेके जाना है तो आपने ये सारे पैरामीटर्स जो है इंस्टीट्यूशनल चेंज, अब ये टाइटल आप लोग देख ले, द कंसेप्ट ऑफ न्यू एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर डजंट मीन जो हमारे वो इंजीनियरिंग वाला आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मीन्स विद इन द सिस्टम कि उन लोगों को आप ले आए जो कि काम कर सके बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सिस्टम। जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है हमारी एनवायरनमेंट, हमारी एनर्जी, इकोनॉमी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, नेशनल डिफेंस, जियो पॉलिटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। ये हमारा 3rd स्लाइड है। ये जस्ट यहाँ पे मैंने डाला था ताकि आप लोग को एक आइडिया हो कि हम लोग इससे बिल्कुल हटेंगे नहीं। हम लोग जब भी इसकी बात करेंगे तो ये चीज़ें हमारे साथ बार बार आती जाएगी कि हम किस तरह एक इफेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है वो पुराना जो एक स्लाइड था कि यहाँ पे स्टेक होल्डर इन ए ब्रॉडर डिफिनेशन ऑफ इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर, मतलब ये है कि जो आपकी सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप उनके जरिए अपने सिस्टम को आप चला सको, और डेवलपिंग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस या अल्टरनेटिव या फिर स्ट्रेटेजी, इन सब की जब हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी दो पार्टीज के बीच में एक डील होती है, फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग पश्तो में यूजुअली जरगा कहते हैं यूजुअली, तो जब भी होती है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो कहोगे दूसरी पार्टी भी हर एक चीज उसी तरह एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ पे फिर हमेशा के लिए हम लोग आते हैं कि आपकी डिफिनीशन और रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। वो आपकी होती है थ्रू डिफरेंट स्टेक होल्डर, जिसको हम लोग वो जरगे के लोग कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपकी वो करते हैं, डिफिनीशन आपका इशू आ गया जो आपका वो कोलिजन पॉइंट है। इसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंसेस मैट्रिसेस होती है। क्या हर एक बंदा जरगा कर सकता है? खास लोग होते हैं, तो ये वो परफॉर्मेंसेस मैट्रिसेस, यार इन लोगों ने फला फला के का बड़ा खतरनाक था यहाँ पे वहां पे, इन लोगों ने इस तरह के मसाइल भी हल किए हैं। तो फिर हम उसमें ये यूजुअली करते हैं कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दो लोगों को उठा लेते हैं, 2-3 को हम लोग कल्चरली लिहाज से उठा लेते हैं, 1-2 को हम लोग बाहर से ले आते हैं ताकि वो सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। नेक्स्ट है हमारे साथ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। अल्टरनेटिव, अच्छा, किसी भी फरीक के पास जाने से पहले ये आपस में पहले अपना सलाह मशवरा कर लेते कि इस फरीक के हम लोग किस तरह बात करेंगे, किस तरह इससे हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं। फिर इसकी फॉर एग्जांपल जब अल्टरनेटिव जब भी होती हैं तो वो उसको उनको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन 1 आपके साथ ये है, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 ये है। तो फिर अल्टरनेटिव्स के अंदर ही फिर भी एक मॉडिफिकेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि दोनों पार्टीज का यहाँ पे एक पेज पे होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज। जब फॉर एग्जांपल दोनों फरीक एक पेज पे आ जाते हैं तो आप एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आ जाते हो, तो आप कहते हो कि अच्छा, आजकल तो आप लोग को अगर आइडिया हो 2010 के बाद आई थिंक
पीटीआई के गवर्नमेंट में ये विलेज लेवल पे, कौंसिल लेवल पे डिफरेंट ये जरगे के ऑफिशियल नॉमिनीज की एक नोटिफिकेशन हो गई। तो वो लोग अक्सर ये कहते थे कि बजाय के लोग कोर्ट के पास जाए तो आप लोग इन लोगों के थ्रू अपने मसले मसाइल हल कर लीजिए। अच्छा, कोर्ट के पास जब वो फैसला जाता था तो ये जो इलेक्टेड लोग होते थे तो वो कहते थे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई जेड जो आप लोग के नोटिफाइड लोग थे, इनके थ्रू मैंने ये मामला उठाया था इसके साथ, बट वी डिड नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन, इस वजह से हम लोग अभी कोर्ट के पास आ गए। और कुछ कोर्ट भी अक्सर ये कहते थे कि क्या आप लोगों ने लोकल कौंसिल को, जो लोकल फॉर एग्जांपल आप इसको कह दो कि वो लोग जो लोगों को आपस में मिला ले ताकि कोर्ट्स पे बर्डन कम रहे और जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो लोकल लेवल पे आप मतलब हल कर सके। तो अभी आप इस डिफिनीशन को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आप लोग लेके जाए कि स्टेक होल्डर के बगैर यू इवन कैन नॉट मूव। क्योंकि देखो, देख लीजिए अभी पाकिस्तान के बाद जब ये बजट पास हो गया तो हाउ मच अ कियास सिचुएशन वी वर फेसिंग कि आईएमएफ से लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हम एक पार्टी है, वो एक दूसरी पार्टी है। कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका तो वो आपका बिल्ड होता है, बेस्ड होता है डोनर पे। तो अगर आप यही सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करें तो ये एक बहुत बड़ी वो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जिस तरह आप लोगों ने अगर कभी वो ये सफर किया हो थ्रू साउथर्न एरियाज में, जब आप दरा अदम खेल को क्रॉस कर लेते हैं, दैट स्पेसिफिक टनल व्हिच इज अबाउट 3 किलोमीटर व्हिच कनेक्ट कोहाट विद दरा अदम खेल, तो दैट वाज बिल्ट बाय जापान। उन लोगों ने बनाया था 2002 या 3 में मेरे ख्याल में, इन द टाइम ऑफ मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। तो उनके साथ एक एग्रीमेंट था कि 12 साल तक हम आपको आपका पैसा, इससे जितनी कलेक्शन आएगी वो हम आप लोगों को देते जाएंगे जो कुछ आप लोगों ने। अच्छा, उन लोगों ने कौन से बेस पे डिसीजन लिया था? उन लोगों को ये पता था कि हर रोज को हाट से पेशावर तक इतने व्हीकल्स ने आना और जाना होता है, तो इसके मुताबिक ये 12 साल अलॉन्ग विद दैट फेयर ये फिर आ गया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा, ये तो अब स्टेट लेवल पे आ गया। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं लोकल एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान रेलवेज के पास जब बहुत सारे वसाइल थे, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बट दे वर डोंट नो दैट हाउ टू मेक इट मोर या मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उन लोगों ने एक स्ट्रेटजी ले आए जिसको कहते हैं ओपन रेल पॉलिसी, ओपन लिंक पॉलिसी। उसमें यह था कि जिस तरह मुल्क के जितने बड़े बड़े वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल एनएलसी या फिर एफडब्ल्यूओ या फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए कंसल्टेंट, उन लोगों के साथ रब्ता किया गया। उनसे कहा गया कि आप लोग रेल की, पाकिस्तान रेलवेज की पटरियों पे आप लोग अपने ट्रेन आप लोग चलाएं और आपने हमें फिर किराया देना। पूरा का पूरा सिस्टम उनका अपना होगा, लोकोमोटिव उनके अपने होंगे, बोगीज हर एक चीज उनकी अपनी होगी। सिर्फ पाकिस्तान रेलवे ने क्या करना है, किराया लेना है और सेफ ऑपरेशन उनको प्रोवाइड करने हैं। दैट्स सेफ ऑपरेशन इन टर्म्स, फॉर एग्जांपल एक स्टेशन से ट्रेन ने होके जाना है तो उसको उसने मतलब कम्युनिकेशन हर एक चीज कंट्रोल पाकिस्तान रेलवे के पास रहेगी। अब ये सारी की सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है।